राहुल गांधी आज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। राहुल के खिलाफ बीजेपी खड़ी कर रही है भीड़। दोस्तों, ये सवाल है हमारा, और ये सवाल क्यों है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. India is a very plural country. India is an open country. India is not one idea. India is multiple ideas. उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। Huge increase in China's power. China is our neighbor. भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी को इंदिरा गांधी की तरह नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, जिससे सवाल उठता है कि क्या भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रही है। मंच पर पूर्व विधायक तरवेंद्र सिंह मारवा ने कहा कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते तो उनका भी वही हाल होगा जो उनकी दादी का हुआ था। आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों वीडियो। राहुल गांधी आज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। सुप्रिया स्नेत एक्स पर लिखती हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। दिल्ली बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरवेंद्र सिंह मारवा ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। बीजेपी का ये नेता खुलेआम इस देश के नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दे रहा है। अब वो वहाँ पे स्पेशली मेंशन करती हैं जेपी नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को। आप इस धमकी पर चुप नहीं रह सकते, यह हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका में हैं और उन्होंने वहां भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे दबाव के बारे में बात की, जिससे भाजपा की नाराजगी बढ़ गई। उनकी आरएसएस पर लगाए गए आरोपों के चलते भाजपा ने राहुल के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया, जिसमें उन्हें चीन समर्थक बताने का भी आरोप लगाया गया। आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों ये वीडियो। Look, the world is changing. There's a huge increase in China's power. China is our neighbor. We have a relationship with the United States. So we are right in the middle of all this geopolitical change, and so we have to have a long-term vision, strategic vision, and it shouldn't be one tactical move after another tactical move. It should be, okay, this is how we're thinking about it for the long term. This is the basic foundation, and we're going to walk on this path. I think the central elements of that, from our perspective, have to be the democratic idea. Have to be the central ideas that our freedom fighters and Mahatma Gandhi and others fought for, which is peace, non-violence, cooperation, harmony. All right, but it's difficult to do with an aggressive neighbor. Yeah, but India's pretty smart at doing these type of things. I mean, we can maneuver. I'm confident about that. But it's important that to do this properly, you have to have a very good sense of who you are and what your own nature is. Right. And that's where I don't agree with the current dispensation. When you imagine yourself to be something you're not, that's when the problems come, right? India is a very plural country. India is an open country. India is not one idea. India is multiple ideas. And when you imagine yourself to be something you're not, that's when all your strategic problems start. Okay. So I've just gotten a bunch. I mean, we are weakening our biggest asset, right? Our biggest strategic asset, India's biggest strategic asset, which is our democracy, which is just not India's asset,
it is the world's asset because it's so big, it's a global public good. It's being attacked in India, right? And that is the foundation. That's the foundation of all our strategic imperatives. जबकि इस वीडियो के ठीक उलट राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे और आरक्षण के बारे में भी स्पष्ट किया है कि वह आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इस तरह से भाजपा लगातार राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयत्न कर रही है। राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि जब तक समाज में असमानता बनी रहेगी तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये मानना है जब तक हमारे समाज में ऊंच नीच या कम ज्यादा का फर्क है तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए, और जब एक समान स्थिति में पूरा देश आ जाएगा या इस देश के नागरिक आ जाएंगे तो ये आरक्षण उसके बाद खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नौकरी में ओबीसी और दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि धन्ना सेठों में उनकी संख्या बहुत कम है। एक्स पे उन्होंने एक वीडियो शेयर की और उसमें वो लिखते हैं, कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं साफ कर दूं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ स्पष्ट होता है राहुल गांधी कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, और आपकी स्क्रीन पे वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। Or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. दोस्तों, अब ये सेम चीज जब मोहन भागवत जी ने कहा, मोहन भागवत के भी इसी संबंध में बयान देने पर राहुल ने सवाल उठाया कि भाजपा इस पर चुप क्यों है। आपकी स्क्रीन पे है वीडियो। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। राहुल का कहना था कि भाजपा की ओर से उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिससे उनके खिलाफ गलत धारणाएं बनती हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा किस तरीके से उनके बयानों को, उनके भाषणों को ये गोदी मीडिया, ये मोदी की आईटी सेल तोड़ मरोड़ कर दिखाती है, उनके लिए कैंपेनिंग चलाती है, जिससे कि उनका एक दुष्प्रचार देश में होता है। प्रधानमंत्री द्वारा संसद में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताने के प्रयास की भी आलोचना की गई, यह दर्शाते हुए कि भाजपा लगातार डर और नफरत की राजनीति कर रही है। राहुल ने कहा कि अहिंसा का संदेश देने वाले महापुरुषों ने कभी हिंसा की बात नहीं की है, लेकिन भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को डराने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहने की कोशिश गलत है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है।
बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। जब सिखों की उपस्थिति वाले आंदोलन का जिक्र आता है तब भाजपा उन्हें खालिस्तानी बताकर समाज में विभाजन की कोशिश करती है। इस पर राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने बयान का रेफरेंस दिया, जिससे उनकी बात को गलत रूप से पेश किया गया। जब पीएम मोदी ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी सुरक्षा की चिंता जताई, जो कि एक्स में अभी भी अवेलेबल है, हम आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, जहां पे ANI से उन्होंने वार्तालाप करी और ANI का एक ट्वीट है जो कि अभी एक्स कहा जाता है कि सीएम को थैंक यू कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच गया हूं। दोस्तों, उस दिन क्या हो रहा था? कुछ सिख किसान आंदोलन कर रहे थे और मोदी जी रैली के लिए निकल रहे थे वहां से। हालांकि ऐसा नहीं था, आपको एक फोटो शेयर करना चाहेंगे। एक्चुअली मोदी जी ब्रिज पर ट्रैफिक में फंसे हुए थे और वहां से वो वापस चले जाते हैं उसके बाद इस तरीके का एक ट्वीट करते हैं कि मैं जिंदा पहुंच गया। मतलब आप सिखों से असुरक्षित हैं क्या? सिख समुदाय आपके पीछे पड़ा हुआ है? ट्वीट को देखने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि भाजपा सिखों को लेकर पूर्वग्रही नजरिया रखती है। किसानों को हिंसा से जोड़ना और उनके आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ने का प्रयास भाजपा का एक एजेंडा प्रतीत होता है, जो कि सिख समुदाय के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। राहुल गांधी ने सिखों के प्रति हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा कि सिख किसान प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक मीडिया ने इस आंदोलन को खालिस्तानियों से जोड़ने का प्रयास किया। राहुल ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने सिखों के खिलाफ कोई उत्तेजना नहीं फैलाई, जबकि प्रधानमंत्री स्वयं इस संदर्भ में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, क्या दरअसल समस्या राहुल गांधी के बयान में है या फिर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में, जो लगातार सिख समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं? राहुल का मानना था कि भाजपा की यह रणनीति भारतीय राजनीति के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे समाज में विभाजन और नफरत का माहौल उत्पन्न होता है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह बिना सोचे समझे झूठ बोलने और सामाजिक तनाव बढ़ाने का काम कर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार अपने प्रशंसकों को भड़काकर अपनी राजनीतिक हित साधने में जुटी है। राहुल ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए सभी से सच को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने दर्शकों को आमंत्रित किया कि वे सच के इस सफर में उनके साथी बने और पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट यहीं तक थी। धन्यवाद।